So, good afternoon. We are here for the journey of criminal trial in criminal courts, right? And in this lecture, we will see the nature of crime, the criminal procedure in criminal court, and evidence, important provisions of evidence that is required for trial in criminal court. Okay? We will keep our journey slowly but deeply, so you have to concentrate more. Okay? We are here for criminal justice system. Okay? We will first see the structure. We start with Supreme Court, Honorable Supreme Court in the country, nation, High Court in each state, and the government of every state in consultation with High Court may divide the state into districts depending on the area, population and requirement of that particular place. And district may be divided into subdivisions. Court structure is divided according to the need and on the basis of these divisions. In each district, we have district judge. Post of district judge is being known as sessions judge, district and sessions judge. District judge is for civil cases, sessions judge is for criminal cases. Subdivisions are area wise. In metropolitan cities, there are metropolitan areas. In states, we have areas divided as per the police station, and for the purpose of judicial functioning, one police station may be treated as one area under one magistrate, or 2-3 areas of police station under one magistrate, right? We are here for criminal trial, so we are looking after criminal cases. For criminal cases, we have session judge. We are not talking about High Court for the time being. Session judge के नीचे CMM in metropolitan cities. Metropolitan cities are 4: Delhi, Mumbai, Chennai and Calcutta. Okay, so be very clear. Others are the state. So for metropolitan cities we have CMM, here we have CJM, and under CMM and CJM we have JM, here we have 1 and 2, JM 1 and 2. Here we have MM, and MM in metropolitan cities are always first class magistrates. There is no second class magistrate in metropolitan cities. This is the overall division of courts. And how we are concerned about this, because we have to see the jurisdiction as per the powers and sentences. किसके पास कितनी पावर है, कौन से ऑफेंसेस ट्राई कर सकते हैं और उनके पास क्या क्या सेंटेंस देने की jurisdiction है. Okay. Session judge, like Honorable High Court, can try any offense of any punishment. CMM, offenses except punishable with capital or LI, and it may be more than 7 years. It cannot be more than 7 years, under 7 years, under 7 years, under 7 years.
This is relating to exception, except. Okay. JM1 offense is जिसकी punishment less than 7 years and up to 3 years, and 2 का 1 year. ओके. एंड फाइन की जो लिमिट है वो यहाँ पर 10,000 और यहाँ 5,000 है. इनकी जरूरत हमें इसलिए पड़ेगी कि मैं अभी आपको बताऊंगी कि कैसे कैसे सेंटेंस की जा सकती है. दिस इज कॉल्ड द कॉम्पिटेंस ऑफ ए कोर्ट. ओके. एंड दिस इज कॉल्ड द पावर्स. Any offense means powers. Okay. And this is called the territorial jurisdiction. ठीक है. मैं इसको थोड़ा सा एग्जांपल से बताती हूँ. अगर मान लीजिए एक ऑफेंस है जो मोर देन 7 years का पनिशमेंट है, राइट, फाइन ऑफ एनी अमाउंट, वो कमिट होता है एक पर्टिकुलर एरिया में, से रूपनगर. इट हैज ए जुरिडिक्शन of that particular police station. Police districts are different from judicial districts. पुलिस डिस्ट्रिक्ट का जो डिवीजन है वो पुलिस कमिश्नरी के यहाँ से होता है. जुडिशियल डिस्ट्रिक्ट का जो डिवीजन है वो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के यहाँ से हाई कोर्ट की रिकमेंडेशन पर स्टेट गवर्नमेंट करती है. इन चीज़ों को बिल्कुल क्लियर दिमाग में रखिए, राइट. तो मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर रूपनगर पुलिस स्टेशन के अंदर एक ऑफेंस कमिट होता है जिसकी की सजा 7 साल से ऊपर है. तो वो ऑफेंस कहाँ ट्राई होगा? 7 साल से ऊपर वाली कोर्ट में, यानी कि वो ट्राई कंसर्न मजिस्ट्रेट के यहाँ हो सकता है मेट्रोपॉलिटन सिटी में. ठीक है. लेकिन उसकी जो सेंटेंस है, अगर मान लीजिए वो सेंटेंस करनी है 7 साल से ज़्यादा, तो सेंटेंस के लिए इनको रेफर करना पड़ेगा CMM को, जिसके पास कॉम्पिटेंस ऑफ ग्रांटिंग द सेंटेंस, अवॉर्डिंग द सेंटेंस. क्लियर समझ में आया? एक हुआ ट्रायल का पावर, एक हुआ सेंटेंस करने का कॉम्पिटेंस. ये दोनों चीजों को कंफ्यूज मत करिए. MM1 may try the offense of particular sentence may be more than 7 years. वो कौन करेगा ये मैं अभी आपको बताऊंगी कि उसकी कुंजी कहां पर है, राइट. लेकिन वो उसकी जो कॉम्पिटेंस है सेंटेंस करने की, मान लीजिए उसने उस ऑफेंस में सेंटेंस करना 3 से कम, मे एक्सटेंड टू 7 years है मान लीजिए, और मोर देन 7 years है, मे एक्सटेंड टू 10 years है, और उनकी कॉम्पिटेंस है 3 साल की, तो वो 3 साल तक करनी है तो ओके, इट कैन सेंटेंस. बट अदरवाइज 3 से ज़्यादा करनी है तो the matter has to be referred to after conviction for sentencing to the above court. Clear? Similar is the position of this कि यहाँ मान लीजिए 7 साल तक है, उससे ज़्यादा नहीं करना है, तो इन्हें अगर सेंटेंस करना है तो दे विल सेंड इट टू above court. ओके. अब आप ये देखिए, ये पोजीशन हुई कॉम्पिटेंस की और पावर की. अब मैं आपको ये बताती हूँ कि कौन सा ऑफेंस किसके द्वारा ट्राई होगा और कौन सा ऑफेंस कॉग्निजिबल है या नॉन कॉग्निजिबल है. हम नॉन कॉग्निजिबल और कॉग्निजिबल की जो डेफिनेशन अभी नहीं करेंगे. हम आपको बताएंगे कि ऑफेंसेज आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, कॉग्निजिबल एंड नॉन कॉग्निजिबल. ये इस पर्पज से है कि कॉग्निजिबल ऑफेंस का ट्रायल कैसे होगा, नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस का ट्रायल कैसे होगा, राइट. तो कॉग्निजिबल ऑफेंस, कोई ऑफेंस कॉग्निजिबल है या नॉन कॉग्निजिबल है, कोई ऑफेंस की क्या पनिशमेंट है, वो किसके द्वारा ट्राई होगा, इसके लिए आपके पास कुंजी अवेलेबल है CRPC में, दैट इज शेड्यूल 1 ऑफ CRPC. इसके अलावा और कोई भी प्लेस नहीं है जहां से हम ये पता लगाएंगे कि कौन सा ऑफेंस कहां ट्राई होगा, राइट. तो CRPC में हमारे पास एक शेड्यूल दे रखा है
ये शेड्यूल है आपके पास, अगर किताब है तो आप निकालेंगे, जहां ये लास्ट हमारा सेक्शन 484 खत्म होता है, उसके बाद शेड्यूल शुरू हो जाता है, एंड इट इज इन दिस फॉर्म। सी, ये आप लोगों की बाइबल है सीआरपीसी के लिए, सिर्फ यही शेड्यूल बताएगा, जैसे मैंने आपको सीपीसी के टाइम पर बताया था कि सीपीसी में कोर्ट कैसे प्रोसीड करेगा, सिविल कोर्ट, उसके लिए शेड्यूल में ऑर्डर्स दे रखे हैं और ऑर्डर्स के अंदर रूल्स दे रखे हैं जिनके हिसाब से चलना है। तो सीपीसी हैज प्रोवाइडेड दैट। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में भी शेड्यूल है, एंड दैट शेड्यूल इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये जानने के लिए कि कौन सा ऑफेंस कॉग्निजेबल है, कौन सा नॉन कॉग्निजेबल है, कौन सा किस कोर्ट में ट्राई होगा। तो ट्रायल कैन बी ऑफ एमएम्स कोर्ट, बट कॉम्पिटेंस ऑफ सेंटेंस हैज टू बी लुक्ड इनटू कि वो किस में करेगा कि नहीं करेगा। नाउ इट इज क्लियर। आई थिंक कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज बताएं मुझे। हाँ देखिए, हमने एक तो हुआ हमारा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन, हमने एरिया डिवाइड कर दिया, वो स्टेट गवर्नमेंट विद द कंसल्टेशन ऑफ हाई कोर्ट, कंसर्न हाई कोर्ट से एरिया डिवाइड करती हैं, और एरिया वाइज जुरिडिक्शन दी जाती है टेरिटोरियल। जैसे मैंने बताया कि रूपनगर पुलिस स्टेशन का मैटर है, तो वो रूपनगर एरिया किसको असाइन किया हुआ है, किस मजिस्ट्रेट को, उसकी कोर्ट में ही जाएगा। क्लियर। पहले तो हुआ टेरिटोरियल जुरिडिक्शन, अब आ गई पावर। अब ऑफेंस की पनिशमेंट क्या है, उसके हिसाब से हम उनकी पावर्स देखेंगे। कोई भी ऑफेंस जो होगा वो या सेशन कोर्ट में किसी भी तरह का ऑफेंस ट्राई हो सकता है, राइट। इस सीएमएम कोर्ट में मेट्रोपॉलिटन, उसमें स्टेट्स में सीजीएम होगा, सेम पैरेलल पावर का। ऑफेंस जो होगा वो यहां तक का हो सकता है, इस पनिशमेंट तक का, ठीक है। और ये जो है इसमें इस पनिशमेंट तक हो सकता है, और ये इसमें हो सकता है। तो दिस इज कॉल्ड द कॉम्पिटेंस। असाइनमेंट ऑफ द केस इज ओके, ट्रायल उसकी कोर्ट में होगा नहीं होगा किस ऑफेंस का, वो शेड्यूल बताएगा। एरिया तो उसी में जाएगा जिस एरिया का वो मजिस्ट्रेट है, क्योंकि सब डिवीजन कर रखे हैं डिस्ट्रिक्ट के, राइट। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सेशन जज हैं, डिस्ट्रिक्ट के नीचे जो है फर्स्ट लेवल पर, लोअर लेवल पर, वो सारे एरिया वाइज डिवाइडेड कोर्ट्स हैं, और वो एरिया डिवीजन जो है, सब डिवीजन ऑलरेडी स्टेट गवर्नमेंट ने हाई कोर्ट के कंसल्टेशन से कर रखे हैं। पुलिस डिस्ट्रिक्ट और जुडिशियल डिस्ट्रिक्ट अलग अलग हैं, मे बी वो माने सेम, लेकिन पुलिस डिस्ट्रिक्ट जो है वो पुलिस कमिश्नरी के यहाँ से डिसाइड होती है, स्टेट गवर्नमेंट उनसे करती है। और जैसे साउथ डिस्ट्रिक्ट, साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट, आउटर डिस्ट्रिक्ट, राइट। लेकिन हमारे यहाँ जो, हमारे यहाँ पुलिस स्टेशन की जो जुरिडिक्शन होगी वो किस एमएम को जाएगी, कौन सी कोर्ट ट्राई करेगी, वो हाई कोर्ट, स्टेट गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट, ओके। तो एरिया एक अलग चीज होगी। ट्रायल किसकी कोर्ट में जाएगा, सेशन में जाएगा या एमएम में जाएगा, वो शेड्यूल डिसाइड करेगा। शेड्यूल के अंदर क्लियरली लिखा हुआ है, ऑफेंस आगे लिखा है आईपीसी के, इस ऑफेंस से लेकर लास्ट के ऑफेंस तक कि कौन सा कहाँ ट्राई होगा, और ऑफेंस कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है ये भी शेड्यूल में लिखा है। तो दिस इज ए बाइबल ऑफ सीआरपीसी, ठीक। तो शेड्यूल बताएगा ये बात। अच्छा, वो अगर मान लीजिए मजिस्ट्रेट ट्राइबल कोई ऑफेंस है जिसकी पनिशमेंट मजिस्ट्रेट की पावर से ज्यादा है, 7 साल तक की वाली भी है, आप ऑफेंसेज देखोगे तो बहुत सारे ऐसे ऑफेंसेज हैं, तो वो जाएगा मजिस्ट्रेट के द्वारा ही ट्रायल होने। लेकिन क्योंकि मजिस्ट्रेट की कॉम्पिटेंस की फाइन और सेंटेंस की लिमिट है, अगर उसे सेंटेंस उस लिमिट से बाहर करना है तो उन्हें उस कोर्ट में रेफर करना पड़ेगा सेंटेंस के लिए, आफ्टर कन्विक्शन, आफ्टर ट्रायल, जिस कोर्ट के पास कॉम्पिटेंस है। नाउ इट इज क्लियर। तो कोई कंफ्यूजन है? दीज आर द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, criminal structure of the court, ओके। अब हमने शेड्यूल 1 का आपको बता दिया है कि शेड्यूल 1 आपको इसमें अपना दिमाग नहीं लगाना है, इसको रटना है। इट इज लाइक ए डिक्शनरी। जैसे स्कूल में पहले बोलते थे कि अगर आपको इंग्लिश अच्छी करनी है तो हर रोज सवेरे उठो, ब्रेकफास्ट में 5 अक्षर याद करो। तो हम आपको कहेंगे शेड्यूल को पूरा रटना है, कौन सा कॉग्निजेबल है, कौन सा ये अगर है तो आपको वो शेड्यूल पूरा आना चाहिए, बिकॉज दैट इज ऑलरेडी गिवन, उसमें हम कुछ चेंज नहीं कर सकते, ओके। ये हो गई कहानी। अब हम जाते हैं, पहले मैं थोड़ा सा क्राइम का स्ट्रक्चर बताती हूँ, उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकल प्रोसीजर बताऊंगी, देन वी विल गो टू क्रिमिनल प्रोसीजर, ओके।
Crime, what is crime is a social wrong. क्राइम रॉन्ग ही है, लेकिन सोसाइटी ने उसको रॉन्ग कर रखा है, तो स्टेट इज टू प्रोसिक्यूट फॉर दैट। ठीक है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोसिक्यूशन में स्टेट के पास है। और ये जो रॉन्ग है, ये अगर बुक ऑफ क्राइम में ऐड हो जाएगा, बुक ऑफ क्राइम ऑफ दैट कंट्री, तो दिस विल बिकम ऑफेंस। तो क्राइम और ऑफेंस में फर्क पता चल गया, क्या डेफिनेशन है। अगर कोई क्राइम जो कि सोशल रॉन्ग है, उसको किसी स्टेट ने कोडिफाई कर दिया है एज ऑफेंस, बुक ऑफ क्राइम के अंदर डाल दिया है, जैसे इंडिया के अंदर है इंडियन पीनल कोड, आईपीसी, तो इंडिया के कोड में, किताब में, बुक ऑफ क्राइम में इसको पीनल कर दिया, पनिशेबल कर दिया, देन इट बिकम्स ऑफेंस। बहुत सारे ऐसे सोशल रॉन्ग हैं जो बुक ऑफ क्राइम में नहीं है, तो वो ऑफेंस नहीं है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे रॉन्ग हैं। मैं एक एग्जांपल देती हूं, सेक्शन 377 जो आजकल कंट्रोवर्सी में है, लेस्बियन एंड गे के लिए, जिसको सोसाइटी ने, कोर्ट्स ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल टू सम एक्सटेंट कर दिया है by the judicial verdict, but it is still in the book of crime as an offense. Legislature has not taken cognizance by now to delete it. So offense तब तक offense है जब तक ये book of crime में दिख रहा है। ओके, अब offense, हम crime से offense पर आ जाते हैं। offense को प्रूव करने के लिए इसके जो दो एलिमेंट हैं, एक्ट और माइंड, इनको कंबाइन होना पड़ता है। ठीक है, एक्टस रियस और मेंस रियस, इसको हम एक्टस रियस और मेंस रिया कह सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे ऑफेंसेज हैं जिसमें एक ही एलिमेंट है और वो ऑफेंस कमिटेड माना जाता है, जैसे कि किडनैपिंग, (361) पनिशेबल 363। आप किस नियत से ले गए बच्चे को उठा के अंडर द एज ऑफ 18 ईयर्स को, डज नॉट मैटर। ये है नियत और ये है एक्ट, कार्य। जहां हम एक चीज पर रिलाई कर सकते हैं ऑफेंस के लिए, उसे कहते हैं स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। इसी तरह एक ऑफेंस है 120B, कॉन्स्पिरेसी। ठीक है, इट इज जस्ट ए माइंड, नो एक्ट, but it is an offense। ठीक है, तो इन चीजों को आप बिल्कुल खुले दिमाग से देखिए। जनरली offenses, offense has two elements, and for proving that offense you have to see both, काम किया और बुरी नीयत से किया। बुरी नीयत में मैलिस, मोटिव, ऑब्जेक्ट, इंटेंशन, सब कुछ आता है। उसकी क्लैरिफिकेशन ऑफेंस वाइज बिल्कुल क्लियरिटी से कर रखी है। मैं यहाँ पर छोटा सा आपको आईपीसी का एग्जांपल दूंगी, 299, 300 का। बुक ऑफ क्राइम में सबसे बड़ा ऑफेंस माना जाता है धारा 302, इसकी पनिशमेंट है। ठीक है,
बहुत ज़्यादा पढ़ाया जाता है, बहुत ज़्यादा समझा जाता है, जुडिशरी के लिए बहुत ज़्यादा खास रूप से समझा जाता है इस बात को कि 299 और 300 को हम कैसे समझेंगे। 299 ने खूब सारी चीज़ें बता रखी है, क्या क्या चीज़ें चाहिए, 300 में क्या क्या बता रखी हैं, वो आप लोग तैयारी भी कर रहे होंगे और आप जान भी रहे होंगे। हम यहाँ पर थोड़ा सा रेफरेंस करके आपको क्लियर करेंगे, ठीक है। 299 है कल्पेबल होमिसाइड और 300 है कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर। कल्पेबल होमिसाइड है, कल्पेबल का मतलब है पनिशेबल, होमिसाइड का मतलब है ह्यूमन बीइंग को मारना, किलिंग ऑफ ए ह्यूमन बीइंग। पेस्टिसाइड होता है कीड़ों को मारना, ठीक है। जीनोसाइड होता है पूरे ग्रुप को मारना। होमिसाइड हो गया किलिंग ऑफ ए ह्यूमन बीइंग। सो किलिंग ऑफ ए ह्यूमन बीइंग कल्पेबल होमिसाइड है। इसमें दोनों चीजें देखी जाएंगी, मारा भी किलिंग एक्ट और इंटेंशन से मारा या एक पर्टिकुलर नॉलेज एक्वायर की उससे मारा, ये मैंसरिया। ओके, ए के द्वारा बी को मारा जाना विद पर्टिकुलर इंटेंशन और नॉलेज, दिस इज क्लियर। दिस इज नॉट स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, दोनों चीजें प्रूव करनी पड़ेगी। अब कल्पेबल होमिसाइड में थोड़ा सा जो पोर्शन है वो मर्डर है। स्पेसिफाइड नॉलेज या स्पेसिफाइड इंटेंशन या स्पेसिफाइड इंटेंशन विद नॉलेज, वो हो गया मर्डर। किलिंग ऑफ द ह्यूमन बीइंग है और इंटेंशन भी है, लेकिन वो स्पेसिफाइड एरिया क्या है जिसको हमने इस पूरे में से इतने को मर्डर कर दिया। अब बाकी जो बच गया वो हो गया कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। इस पूरे के पूरे एरिया को एंड दिस इज पनिशेबल अंडर 304, ठीक है। तो 299 डिफाइन करती है कल्पेबल होमिसाइड को, उसमें से कुछ स्पेसिफाइड एरिया अगर निकाल दो तो वो 300 में आ जाते हैं जिसे हम मर्डर कहते हैं, और जो उसमें नहीं आते उसे कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। मर्डर अगर प्रूव हो जाए और मर्डर के बाद मर्डर की एक्सेप्शन में फॉल कर जाए, 5 एक्सेप्शंस, तब भी वो कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर माना जाए, यानी उसकी पनिशमेंट उस हिसाब से दी जाएगी। अब आपको मेरा ख्याल है ये क्लियर हो गया होगा, कोई कंफ्यूजन रखने की जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर चीज है। मोटा वाला हुआ 299, 299 इज नॉट स्टेटिंग अबाउट ऑफेंस, इट इज स्टेटिंग अबाउट, इट इज डिफाइनिंग कल्पेबल होमिसाइड। उसके पर्टिकुलर उसी को उसी के आगे एक्सटेंडेड फॉर्म है, थोड़ा ग्रेव हो जाती है, वो हो गया 300 यानी मर्डर, वो कल्पेबल होमिसाइड जो अमाउंटिंग टू मर्डर है, और वो जो नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर है। बाकी बच गया सारा, और उसकी पनिशमेंट यहाँ चली जाएगी, इसकी पनिशमेंट यहाँ चली जाएगी। इसके भी पार्ट 1 पार्ट 2 कर देंगे बाद में, जो कि स्पेसिफाइड है। ओके, मर्डर में से भी मर्डर पहले प्रूव होगा फिर एक्सेप्शन में जाएगा, ऐसा नहीं कि एक्सेप्शन है इसलिए वो कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। पहले प्रोसिक्यूशन मर्डर प्रूव करेगी, फिर डिफेंस एक्सेप्शन प्रूव करेगी, तब वो नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर होगा। मर्डर तो है लेकिन हम इसे अमाउंटिंग टू मर्डर नहीं कह सकते, जैसे राइट टू सेल्फ डिफेंस नानावती केस हमने देखा, राइट। तो यहां पर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल से बता सकती हूं। ए हिट बी हिज वाइफ, हिट मतलब हर्ट हो गया, ऑफेंस की किताब में हिट को हर्ट कहते हैं। हर्ट की अलग अलग सेक्शंस हैं। जब वो फेंट हो गई तो ए ने सोचा मर गई और उसने उसे स्ट्रैंगुलेट कर दिया, टू शो इट ए सुसाइड, स्ट्रैंगुलेट
टू मेक इट इज ए सुसाइड। ठीक है, वेरी फेमस केस, यू मस्ट बी नोइंग, नाम भी पता चल गया होगा, पलानी कोंडल, राइट। सुसाइड दिखाने के लिए उसने स्ट्रैंगुलेट कर दिया, एंड कॉज ऑफ डेथ एज पर पोस्टमार्टम वॉज स्ट्रैंगुलेशन। कोर्ट ने अपहेल्ड किया इस बात को कि इट इज नॉट मर्डर। आम आदमी के लिए एक ही आदमी ने धक्का मारा, एक ही आदमी ने टांगा, टंगने से मरा, तो मर्डर तो होना चाहिए, ठीक है। लेकिन व्हाट वाज द लीगल इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस एरिया, अगर हम 299 300 पर जाएंगे तो वो ये है कि जब इसने स्ट्रैंगुलेट किया तो ही वाज बिलीविंग दैट इट इज ए डेड बॉडी। Killing of a dead body is not homicide, and when it is not homicide, it cannot be a murder. Okay, उसने क्या ऑफेंस किया? हर्ट किया, कंसीलमेंट ऑफ एविडेंस किया। उसकी इंटेंशन क्या थी जब वो टांग रहा था उसे? एविडेंस को कंसील करना। उस वक्त उसे लगा कि ये मर गई है, वो उसको एविडेंस को कंसील करने के लिए उसे टांग दिया, मरी वो टांगने से थी। तो कॉज ऑफ डेथ जो थी वो दैट वाज नॉट कॉज्ड बाय दैट पर्सन। एक्ट तो हुआ उसके द्वारा, लेकिन इंटेंशन डिफरेंट थी। बहुत बारीकी है इस बात को समझने में, थोड़ा सा इसे ध्यान से समझेंगे। हालांकि ये जो केस है बहुत सेटल्ड लॉ है और बाद में कंट्रोवर्सी में आया, राइट। कुछ कोर्ट्स ने ये माना कि इट वाज ए मर्डर, कुछ कोर्ट्स ने ये माना, एंड ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया वो हम कभी जब आईपीसी के प्रोविजन करेंगे तो हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो मेरा यहाँ ये समझाने का सिर्फ ये मतलब था कि एक्ट और इंटेंशन, एक्ट तो चाहिए ऑफेंस प्रूव करने के लिए, और एक स्पेसिफाइड इंटेंशन चाहिए, मेंस रिया चाहिए, जो उस पर्टिकुलर ऑफेंस को उस ऑफेंस की कैटेगरी में डालेगा, राइट। एक हम थेफ्ट का छोटा सा और एग्जांपल लेंगे जिससे कि हम क्राइम को क्लियर करेंगे। थेफ्ट में मूविंग ऑफ a thing becomes a theft with dishonest intention. आप यहाँ बैठे हैं, आपका चश्मा यहाँ रखा है या पेन वहाँ रखा है या मोबाइल रखा है, आपके पड़ोसी ने उस मोबाइल को कन्वीनियंस के लिए, ताकि गिर ना जाए, रास्ते में आ रहे थे, उठा के अपनी वाली टेबल के पास रख दी इस इंटेंशन से कि गिरे नहीं। थेफ्ट कमिटेड और नॉट, यहाँ इंटेंशन मैटर करती है। किडनैपिंग में इंटेंशन मैटर नहीं करती, दैट इज ए स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। आपने उस मोबाइल को बराबर में बैठे थे, अपनी किताब के नीचे दबा दिया, ये भूल जाएंगी जब अपना सामान उठाएंगे नहीं दिखेगा नहीं, और मैं अपनी किताब के नीचे से उठा के ले जाऊंगा। थेफ्ट है कि नहीं है? तो प्लीज सी, दिस इज द ब्यूटी ऑफ क्रिमिनल लॉ कि आपने एक्ट और इंटेंशन को जाना है, लेकिन सेक्शन के अंदर लिखा होना चाहिए, राइट। तो 379 डिफाइंड अंडर, थेफ्ट डिफाइंड अंडर विच सेक्शन? ये पनिशमेंट है, ये 378। ऑलवेज रिमेंबर कि सेक्शन में कहाँ डिफाइंड है और कहाँ पनिशमेंट है। कुछ ऐसे ऑफेंसेज में जिसमें डिफाइंड है, पनिशमेंट भी उसी में प्रोवाइडेड है। तो सेक्शंस की भी प्रॉब्लम आती है जो आपको ध्यान रखना है, ओके। अब हमने ये क्राइम पर थोड़ा सा करने के बाद अब हम क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पर जाते हैं, राइट। जहां भी आपको क्लियर नहीं होगा प्लीज टेल मी। ये हम एक ओवरव्यू कर रहे हैं पूरा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का, कैसे कैसे चलती है, ताकि आप जब पढ़ोगे तो आप अपना दिमाग खोल के समझ सकोगे कि ये वो इसलिए है। कई बार हम कोई जजमेंट करते हैं, कोई जजमेंट पढ़ रहे होते हैं तो कहते हैं दिस इज नॉट डन, मजा नहीं आया, ऐसा नहीं होना चाहिए, गलत बात है ना। लेकिन नहीं, जब कोर्ट कोई जजमेंट देता है तो वो पूरा दिमाग लगाता है पूरे प्रोविजंस को और एक एक चीज को ध्यान से देखता है। दैट आई कैन से बिकॉज आई हैड बीन जज फॉर सो मेनी ईयर्स
इसलिए हम कभी कभी आम इंसान की तरह जब सोचते हैं, बिल्कुल नॉर्मल कॉमन मैन की तरह, हाउएवर लॉ इज ए कॉमन सेंस कोडिफाइड इन द बुक एंड बिकम्स लॉ, बट बहुत सारी बारीकियां हैं लॉ के अंदर जो लॉ के स्टूडेंट को, लॉ के फील्ड में आने वालों को बहुत बारीकी से देखना है। तो जब भी कोई जजमेंट का रिजल्ट आपको अपील नहीं करे, गो बैक टू द जजमेंट, रीड इट विद ओपन माइंड। ऐसा नहीं कि गलत है, गलत गलत गलत, अच्छी बात नहीं है, ठीक? तो वहां से जरूर जाओ, बिकॉज वहां इंसाइट मिलेगी। ये मैंने दोनों के दोनों ऑफेंसेस सिर्फ इसलिए बताए कि इसके इंसाइट में जनरली कंफ्यूजन होता है बच्चों जो इस फील्ड में आने वाले हैं, ठीक है? अब हम क्रिमिनल प्रोसीजर पर जाएंगे। यानी कि ऑफेंस से जजमेंट तक, ठीक है? पहले मैं आपको स्पॉट पर ले जाती हूँ क्राइम के, जहां पे क्राइम हो रखा है, उसके बाद बताऊंगी प्रोसीजर। ये एक जगह है स्पॉट, यहां पर ए ने बी को नाइफ से हिट कर दिया, राइट? 112 में फोन किया किसी ने, ये पता है आपको? पीसीआर, पुलिस कंट्रोल रूम, पूरा का पूरा दिल्ली जो है वो सेंट्रल कंट्रोल रूम से जुड़ा हुआ है किसी भी ऑफेंस से रिलेटेड। ए इन्फॉर्म्ड, एक्स इन्फॉर्म्ड टू द पुलिस, दैट रिकॉर्ड्स ए डीडी एंट्री, डेली डायरी एंट्री। दिस इज डेली डायरी एंट्री 1। मिस्टर ए ने फला फला जगह से इतने बजे इतला दी है कि फला आदमी ने फला आदमी को चाकू से मार दिया, किसी अफसर को भेजा जावे, राइट? ये रिकॉर्ड मैकेनिकली 112 नंबर करती है, राइट? इन्होंने कहाँ इतला दी है? कंसर्न पुलिस स्टेशन में। एवरी एरिया इज डिवाइडेड इनटू द पीसीज, और हर एक एरिया अपने पुलिस स्टेशन के एरिया के लिमिट्स में आता है। कॉग्निजेंस कौन लेगा? कंसर्न पुलिस स्टेशन, राइट? सेंट्रली लोकेटेड जो व्हीकल है, जो इन्होंने सिस्टम क्रिएट कर रखा है कंट्रोल रूम का, वो कंट्रोल करेगा, बताएगा इंफॉर्मेशन। दिस विल गो टू कंसर्न पुलिस स्टेशन। यहाँ एक और डीडी एंट्री रिकॉर्ड होगी, डीडी नंबर 2, नंबर जो चल रहा होगा वही चलेगा, रनिंग होता है वो। सेकेंड डीडी एंट्री होगी, यहां पर लिखा जाएगा फलाने पीसीआर से इतला आई है कि फला जगह पर फला ने फला को मार दिया है चाकू से, किसी अफसर को भेजा जाए। अब यहाँ पर एक इंक्वायरी ऑफिसर को डिप्यूट किया जाएगा पुलिस स्टेशन से फॉर इंक्वायरी, और ही विल रीच टू स्पॉट। दिस इज द प्रैक्टिकल लॉ, यू हैव टू अंडरस्टैंड, तभी आपको वो वर्ड समझ में आएंगे, प्रोसीजर समझ में आएगा, राइट? यहाँ पर इन्होंने डीडी एंट्री लिखी और ये यहाँ पर पहुंचे स्पॉट पर। स्पॉट पर दो तरह की सिचुएशन हो सकती है, या तो इंजर्ड मिल जाए या इंजर्ड का कोई रिलेटिव मिल जाए, या दोनों में से कोई भी नहीं मिले, पता चला हॉस्पिटल चले गए, पीसीआर उनको हॉस्पिटल भी ले गई है, पीसीआर ने खुद को उसको बिठाया, चाहे पीसीआर ने एम्बुलेंस बुलाई, जो भी कराया कंसर्न हॉस्पिटल में ले गई, किसी भी पास के हॉस्पिटल में, राइट? अगर मान लीजिए यहाँ पर ये इंजर्ड मिल जाता है, तो ये जो होगा ईओ, ही विल रिकॉर्ड हिज स्टेटमेंट। इसकी स्टेटमेंट से और इसकी इंजरी से अगर उसे लगेगा कि कॉग्निजिबल ऑफेंस इज बीइंग कमिटेड, तो वो लिखेगा कि इसकी स्टेटमेंट से फला ऑफेंस कॉग्निजिबल पाया जा रहा है, उस कंप्लेंट पर, उसकी स्टेटमेंट पर इंडोर्समेंट करेगा, उस इंडोर्समेंट को कहते हैं रुक्का। ये रुक्का इज अनदर डीडी एंट्री नंबर 3।
जिससे कि हालात से ये सारा पाया जा रहा है कि ऐसा ऐसा ऑफेंस हुआ है, तो कृपया एफआईआर दर्ज की जाए। अब ये ही विल सेंड समबडी टू पुलिस स्टेशन फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ एफआईआर। एफआईआर कहाँ पे रजिस्टर होगी? पुलिस स्टेशन के अंदर, ठीक है। पुलिस स्टेशन में एफआईआर के नेचर को देखते हुए, मान लीजिए पहले हेड कांस्टेबल को भेजा गया था, पता चला कि ये तो 302 बनने के चांस है, बंदा मर सकता है, इंजरी वॉज वेरी ग्रीवियस एंड ऑन द फैटल पार्ट, वाइटल पार्ट ऑफ द बॉडी, या 308 बन सकता है, या 307 बन सकता है। 307 बनेगा अगर इफ इट इज अटेम्प्ट टू मर्डर, 308 बनेगा इफ इट इज अटेम्प्ट टू कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। अब आपको क्लियर हो रही है मैंने ये क्यों बताई थी चीज़ें, ठीक है। 324 होगा अगर चक्कू लगा है लेकिन वाइटल पार्ट पर नहीं है, तो ऑफेंस देखेंगे और उसके हिसाब से अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो यहाँ जाएगा, और वो ये सजेस्ट करेगा कि ऐसा ऑफेंस लगता है, किसी अफसर को भेजा जाए। और अगर मान लीजिए यहाँ पर पता चलता है कि ऑफेंस जो है उसका नेचर मर्डर जैसा हो सकता है या 307 308 है, तो हो सकता है इंक्वायरी अफसर बदला जाए और इन्वेस्टिगेशन किसी को असाइन किया जाए या उसी को जो सेम गया हुआ है उसको करा जाए। तो ये यहाँ पर एक अपॉइंट हो जाएगा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कब अपॉइंट होता है? जब एफआईआर रजिस्टर हो जाती है, राइट। हम एफआईआर पर पहुंचते हैं तो ये 154 आ जाता है सेक्शन आईपीसी का, सीआरपीसी पे मत जाना अभी, ये सीआरपीसी का, आईपीसी नहीं, ठीक है। 154 सीआरपीसी, ये सेक्शन रजिस्टर होते के साथ ही ये वापस गए और ये यहाँ पर आकर स्पॉट इन्वेस्टिगेशन करेंगे। स्पॉट इन्वेस्टिगेशन मीन साइट प्लान बनेगी, फर्दर स्टेटमेंट्स ऑफ 161 रिकॉर्ड होंगी, सेक्शन 161 सीआरपीसी, इन्वेस्टिगेशन इज ऑन नाउ। स्पॉट इन्वेस्टिगेशन 154 से आगे हम इन्वेस्टिगेशन यहीं पे शुरू कर देते हैं। 161 के लिए हमने स्टेटमेंट्स कर दिए। जो आपका स्पॉट इन्वेस्टिगेशन है वो आपको मिलेगा पुलिस रूल्स में। हर एक स्टेट के अपने पुलिस रूल्स हैं। इन्वेस्टिगेशन इज ऑलवेज ए प्रेरोगेटिव ऑफ द पुलिस। Courts have no interference in that except supervising in case the horns of the courts are being raised. कंप्लेनेंट आकर कोई शोर मचाता है कि ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, अदरवाइज इन्वेस्टिगेशन इज द प्रेरोगेटिव ऑफ पुलिस एंड इट इज रन अंडर पुलिस रूल्स। वो केस डायरीज बनाएंगे, केस डायरी में लिखेंगे और आगे आगे कैसे प्रोसीड करेगा ये पुलिस रूल्स बताएंगी कंसर्न स्टेट की। जैसे दिल्ली पुलिस रूल्स है, अभी दिल्ली पुलिस रूल्स बन गए, पहले जब शुरू में पंजाब पुलिस रूल्स ही दिल्ली पर अप्लाई होते थे। तो अगर जज बनना है, जुडिशरी में जाना है, तो आपको पुलिस रूल्स भी पढ़ने होंगे। अगर आपने देखा ना इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर है नहीं है, इन्वेस्टिगेशन सही ढंग से हुआ था नहीं हुआ था, इन्वेस्टिगेशन की कमी से क्या क्या इफेक्ट हो रहा है ट्रायल पर। अभी हम यहाँ पर कोर्ट बीच में आई नहीं, अभी ये ऑफेंस हो रहा है और इन्वेस्टिगेशन की वो हो रही है। देखिए अब यहाँ ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेंगे, स्पॉट इन्वेस्टिगेशन मतलब साइट प्लान बनेगा। और अगर हॉस्पिटलाइजेशन है तो जो बयान है अगर यहाँ स्पॉट पर अवेलेबल नहीं है तो हॉस्पिटल में लिए जाएंगे, अगर रिलेटिव अवेलेबल है तो रिलेटिव का लिया जाएगा, अगर इंजर्ड दे सकता है स्टेटमेंट तो डॉक्टर के कहने पर फिट फॉर स्टेटमेंट के बाद उसकी स्टेटमेंट ली जाएगी। जिसकी भी स्टेटमेंट पहले लिखी जाएगी उसे कंप्लेंट कहेंगे, वो इंडोर्स हो जाती है और वहाँ से एफआईआर दर्ज होती है, क्योंकि वही स्टेटमेंट एफआईआर का बेसिस होती है, राइट। तो यहाँ अगर इंजरी से रिलेटेड है तो एमएलसी रिक्वायर्ड होएगी, एमएलसी में नेचर ऑफ ऑफेंस लिखा होगा, या अगर मान लीजिए पर्सन इज गोइंग टू डाई और ब्रॉड डेड है तो पोस्टमार्टम के लिए जाएगा। ये हॉस्पिटल से रिलेटेड कार्रवाइयाँ हैं, ठीक है। एमएलसी होगी, चाहे पीएम रिपोर्ट आएगी, जो भी कुछ होगा, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन ये होने के बाद 161, अगर कोई ऐसी स्टेटमेंट है कन्फेशनल स्टेटमेंट है तो वो सेक्शन 164 में जाएगी। अगर यहाँ पर अक्यूज अरेस्ट हो गया, मान लीजिए अक्यूज मौजूद था या हमने सर्च किया अक्यूज का और सर्च मिल गया, अक्यूज
मिल गया, एप्रीहेंड हो गया, तो सेक्शन 167 ऑपरेशन में आ जाएगा। 167 का मतलब क्या है? प्रोडक्शन ऑफ अक्यूज बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ विद इन, टेल मी, 24 hours ऑफ अरेस्ट। ओके, और यहां से 1 and 2 फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए अगर डिटेंशन होगी तो अक्यूज की जुडिशियल कस्टडी होगी या पुलिस कस्टडी होगी, वो कोर्ट की परमिशन से ही होगी, कोर्ट के ऑर्डर से होगी। यहाँ कोर्ट का रोल आ जाता है अरेस्ट के बाद। ओके, आईओ में से कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन रिक्वायर्ड इन द प्रेजेंस ऑफ द अक्यूज, और वो पुलिस कस्टडी मांग सकता है। मुझे वेपन रिकवर करना है, मुझे को अक्यूज अरेस्ट करना है, मेरे को प्लेस पर ले जाकर सर्च कराना है, मेरे को कपड़े रिकवर करने हैं, वट जो भी कोई इन्वेस्टिगेशन जो अक्यूज की प्रेजेंस में जरूरी है, वो पुलिस कस्टडी मांगी जाएगी। पुलिस कस्टडी कैन बी गिवन फॉर हाउ मेनी डेज? ओनली 15 days, नॉट मोर देन दैट। प्लीज रिमेंबर, पुलिस कस्टडी कैन बी ओनली फॉर द 15 days, एंड 15 days में पुलिस कस्टडी, ये सवाल आ सकता है कि एक बार मांग सकता है, 2 बार मांग सकता है, कितनी बार मांग सकता है, और अप टू हाउ मेनी पीरियड, हाउ मच डेज, हाउ मेनी डेज। ओके, तो पुलिस कस्टडी एक साथ 14 दिन की, 15 दिन की मांग सकते हैं, 1 दिन की मांग सकते हैं, बीच में जुडिशियल कस्टडी ले सकते हैं, वो पुलिस कस्टडी फर्दर एक्सटेंड कर सकते हैं, राइट। तो पुलिस कस्टडी का जो पीरियड है वो 15 दिन से ज़्यादा का नहीं है सीआरपीसी में। बाकी कुछ और एक्ट हैं, स्पेशल एक्ट्स, उनमें कुछ और प्रोविजन भी है जहां इस प्रोविजन को थोड़ा उसके हिसाब से करा हुआ है, टाडा टाइप। ठीक है, तो ये जो पीरियड है 15 days का, दिस इज फॉर पुलिस कस्टडी, एंड ये कई बार दी जा सकती है, 1 दिन की दी जा सकती है, एक साथ दी जा सकती है, बट दिस वुड बी गिवन ओनली फॉर द रीजन कि अक्यूज की प्रेजेंस रिक्वायर्ड है फॉर दैट इन्वेस्टिगेशन। अगर नहीं है लेकिन इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यूड है, इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड नहीं हुआ है 24 घंटे में, तो फर्दर जुडिशियल कस्टडी दी जाएगी, और ये जुडिशियल कस्टडी दी जाएगी 60 days और 90 days डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ ऑफेंस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन 167 1 and 2। प्लीज go through each and every word। फर्स्ट वर्ड से कोर्ट सेटिस्फाई हो कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन रिक्वायर्ड है और अक्यूज की कस्टडी जरूरी है, किसको, चाहे वो जुडिशियल कस्टडी हो या पुलिस कस्टडी हो। तो जज साहब कोर्ट में पहले इस बात को सेटिस्फाई होंगे कि एक तो जो एलिगेशन है वेल फाउंडेड है, दूसरी बात फर्दर इन्वेस्टिगेशन रिक्वायर्ड है, राइट। तब वो कस्टडी, और अगर अक्यूज का इन्वेस्टिगेशन पुलिस की कस्टडी में जरूरी है तो वो देखा जाएगा, राइट। 60 days for the offenses which are punishable up to the imprisonment of। देखिए मैं किसी सेक्शन पर नहीं रुकी, यहाँ के हम क्यों रुके, बिकॉज एक एक डे कीमती है। पुलिस कस्टडी का 15 दिन, ये 10 साल, नॉट ग्रेटर देन 10 years, और ग्रेटर देन 10 years और एलआई और कैपिटल। अगर इस पीरियड में कंक्लूड नहीं करता है और चार्जशीट नहीं आती है, 173 सेक्शन के अंदर चार्जशीट आती है, इसे चार्जशीट कहते हैं, फाइनल रिपोर्ट। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड करके अगर नहीं आती है तो डिफॉल्ट बेल मिलती है, डिफॉल्ट बेल, कि ठीक है आप इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं कर सकते तो अब इसको हम कस्टडी में नहीं रखेंगे, ये बेल पर रहेगा, आप इन्वेस्टिगेशन करते रहिए। एंड दिस डिफॉल्ट बेल इज नॉट ऑन मेरिट्स, ये देखा नहीं जाएगा कंप्लेनेंट का क्या है, विक्टिम का क्या है, बेल कैसे करेगा, ये करेगा वो। तो डिफॉल्ट बेल यहाँ पर आपसे क्वेश्चन आ सकता है, उसके साथ साथ ऐड होता हुआ
कि अक्यूज का क्या करेंगे अगर वो कहता है कोर्ट से कि मुझे बेल दे दो। उसकी बेल हाई कोर्ट तक रिजेक्ट हो चुकी है ऑन मेरिट्स, लेकिन डिफ़ॉल्ट बेल मिल जाएगी अगर इस पीरियड के अंदर वो नहीं करते हैं। अब 173 सीआरपीसी में एक चीज़ और ये आपको याद रखना है, 173(8) सीआरपीसी, ये जो क्लॉज है इसको हमें बहुत ध्यान से रखना है। दिस इज टॉकिंग अबाउट सप्लीमेंट्री चार्जशीट। सप्लीमेंट्री चार्जशीट, सप्लीमेंट्री चार्जशीट कैन बी फाइल्ड विद इन 6 months from the date of filing of charge sheet, but with the permission of the court. कभी कभी ऐसा है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आई है, या बिस्तरा भेजा हुआ था मर्डर केस में, उसकी रिपोर्ट नहीं आई है जो ऐड करनी है, जो फाइनल ओपिनियन देगी कॉज ऑफ डेथ का। या मान लीजिए कोई वेपन भेजा हुआ है कहीं लेबोरेटरी में चेक करने के लिए कि गोली इसी से निकली है, या हमने चेक वो पिस्टल और या फिर चक्कू जो है वो हमने लैब भेजा हुआ है ये चेक करने के लिए कि ये जो चोट है वो उसी चक्कू से मारी गई है, राइट। तो इस हिसाब से कभी कभी सप्लीमेंट्री चार्जशीट की परमिशन मांगते हैं पुलिस ऑफिसर्स। ओके, अब इन सेक्शंस के बीच में ये जो 164 है इसको थोड़ा सा ध्यान से आपको पढ़ना पड़ेगा। दिस इज रिलेटिंग टू कन्फेशनल स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट ऑफ ए विटनेस जिसकी गवाही उसी वक्त होनी जरूरी है। जैसे रेप केस में जो विक्टिम है वो ट्रॉमेटिक होने की वजह से या कुछ होने की वजह से हो सकता है बाद में नहीं दे पाए, या बाद में एविडेंस विशिएट हो जाए, या बहुत को अक्यूज है या अप्रूवर है, कोई हाई कॉन्स्पिरेसी केस है, कोई अप्रूवर है जिसकी स्टेटमेंट बाद में मुश्किल हो सकती है, तो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन ये 164 की स्टेटमेंट कन्फेशनल भी हो सकती है। इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे बिल्कुल कि इसमें क्या क्या चीज़ें ध्यान देने की हैं। ये स्टेटमेंट मजिस्ट्रेट करते हैं। देखिए, एरिया इन्वेस्टिगेशन का चल रहा है 154 से लेकर 173 सीआरपीसी तक। दिस इज एफआईआर एंड दिस इज चार्जशीट। तो हमेशा याद रखिए इस सेक्शन के बीच में, इस एरिया के बीच में कोर्ट्स का कोई रोल नहीं है। दिस इज इन्वेस्टिगेशन गवर्न्ड बाय पुलिस रूल्स एंड सीआरपीसी में जो इन्वेस्टिगेशन का थोड़ा बता रखा है, इसलिए सीआरपीसी में इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड बहुत ज़्यादा प्रोविजंस नहीं है, राइट। तो ये एरिया है इन्वेस्टिगेशन, और इसमें कोर्ट का इंटरवेंशन हमने दो जगह देखा। एक तो 167 में देखा जहां अक्यूज अरेस्ट होने के बाद 24 घंटे के अंदर अंदर पेश किया जाएगा, और फर्दर कस्टडी डिटेंशन वुड बी अलाउड ओनली विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट। एक हमने देखा 164 में इनका जो रोल है। एक और रोल है कोर्ट का, वो है सेक्शन 156(3). ये 156(3) जो है ये वो पोजीशन है जबकि कंप्लेनेंट या विक्टिम समझता है कि मेरा इन्वेस्टिगेशन शुरू ही नहीं हो रहा है, या मेरी एफआईआर ही नहीं लिखी गई है, या मेरा इन्वेस्टिगेशन पुलिस करेगी नहीं, तो दिस इज कोर्ट्स इंटरवेंशन फॉर डायरेक्शंस, इसमें फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर एंड टू सम एक्सटेंट सुपरविजन ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, ठीक है, सुपरविजन ऑफ इन्वेस्टिगेशन। बट इन्वेस्टिगेशन वुड ऑलवेज बी ए प्रेरोगेटिव ऑफ द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का जो हेड होता है, पुलिस हेड ऑफ द कंसर्न डिस्ट्रिक्ट इज डीसीपी, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर ऑफ पुलिस, ठीक है। स्टेट्स में एसपी होते हैं, ये डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस कहे जाते हैं क्योंकि कमिश्नर ऑफ पुलिस मेट्रोपॉलिटन सिटीज में एक ही होता है, तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में डीसीपी पोस्टेड है। मैंने उन्हें डिस्ट्रिक्ट सीपी इसलिए बोला, वैसे इसका नाम डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस है क्योंकि डिस्ट्रिक्ट वाइज डिप्टी सीपी बैठे थे, ठीक है। तो ये इंचार्ज होते हैं, इनके अंदर में
एसीपी जो होते हैं कंसर्न, वो कंसर्न पुलिस स्टेशन से रिलेटेड होते हैं इंचार्ज, वो उनका डिवीजन है, जैसे हमारे यहाँ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट वाला। और जो कंसर्न एसएचओ होते हैं वो एरिया पीएस से रिलेटेड। तो प्रैक्टिकली 173 की रिपोर्ट जो है वो एसएचओ कंसर्न के पास से आती है। स्टेट्स में, यूपी में उनको एसओ बोलते हैं। एसओ में भी इंस्पेक्टर, में भी सब इंस्पेक्टर, डिपेंडिंग ऑन दी पोस्टिंग एंड एरिया। ओके, दैट इज एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स। तो ये हमारा एक 155 सेक्शन और देखेंगे। उसमें क्या है कि अगर पुलिस ये समझती है कि आगे फर्दर प्रोसीड करने की जरूरत नहीं है तो वो क्लोजर रिपोर्ट ला सकती है। तो ये थोड़ा सा आप और सेक्शन पढ़ेंगे। दीज आर दी सेक्शंस जिनको आपको बहुत ध्यान से वर्ड बाय वर्ड पढ़ना है। 164 में बहुत सारे चेंजेज आए हैं। 164 ए बी सी, प्लीज टेक केयर। ये रेप केसेज में जो अमेंडमेंट्स आए हैं 2018 में, 2013 के बाद जो वो एरिना एंटर किया है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर, उसमें ये कुछ प्रोविजंस ऐसे डाले हैं जिसमें स्टेटमेंट्स को ऑडियो वीडियोग्राफ कर सकते हैं, ट्रांसलेटर को अपॉइंट कर सकते हैं, इंटरप्रेटर्स को बिठा सकते हैं, सपोर्ट पर्सन अलाउ कर सकते हैं। ये इस तरह के प्रोविजंस हैं, तो उनको आप देखिएगा क्योंकि इस वक्त उनकी बहुत इंपॉर्टेंस है। मैंने आपको वो वाले कराए थे जिसमें कि ये सब था। ओके, तो ये हमारा हुआ, मेरा ख्याल है प्रैक्टिकल होने के बाद ये प्रोविजंस आपको बोलते हुए नजर आ रहे हैं। अब हम चलते हैं, चार्जशीट फाइल हो गई। ठीक, देखिए ट्रायल कितने प्यार से प्रोसीड करता है। इससे पहले हम एक प्रोविजन कराएंगे आपको, अरेस्ट, सेक्शन 41 अरेस्ट। एक केस है अवनेश कुमार, सुना है कि नहीं? इस केस में अरेस्ट से रिलेटेड कुछ गाइडलाइंस इशू हुई हैं। अरेस्ट रिलेटेड गाइडलाइंस, उसके बाद और भी केसेज हैं, पर दिस इज दी स्टार्टिंग ऑफ सम गाइडलाइंस। और ये गाइडलाइंस ऑन द फेस ऑफ सेक्शन 41 ऑफ सीआरपीसी आई है। कुछ ऑफेंसेज 498 ए के, डॉरी हैरासमेंट के, 304 बी के, ऐसे ऑफेंसेज ऐड हुए थे जिनकी वजह से कुछ अमेंडमेंट एविडेंस एक्ट में भी हुए थे और सीआरपीसी में भी हुए थे। तो ऐसा माहौल बन गया था कि जो स्ट्रेंड वाइफ थी, जो हैरासमेंट की कंप्लेंट्स करती थी, वो पूरी की पूरी फैमिली के नाम लिखती थी एफआईआर में। इन्होंने मुझे गाली दी है, ये देवर हैं, इंदौर में रहते हैं, लेकिन कभी कभी आते आते ही मेरी पिटाई शुरू कर देते थे, इनके साथ मिलके कुछ भी था। तो इट वॉज नोटेड कि इवन सीनियर सिटीजन्स और बहुत सारे बुजुर्ग फैमिली के लोग भी नेम्ड इन एफआईआर होते थे। अगर कोई अक्यूज नेम्ड इन एफआईआर है तो जनरली उसको अरेस्ट किया जाता है, राइट। तो कुछ ऐसी गाइडलाइंस आई जिनमें ये कहा कि कुछ लोगों को, खास रूप से रिलेटिव्स ऑफ द हस्बैंड, इस केस की बात बता रहे हैं हम, बाकी दो गाइडलाइंस बहुत सारी आई हुई हैं, को अगर अरेस्ट करना जरूरी नहीं हो तो आप अरेस्ट नहीं करें, और अरेस्ट करना है तो विद द परमिशन ऑफ द इंचार्ज ऑफ द एरिया। इंचार्ज मतलब इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज, डीसीपी। तो ये इसलिए ये केस पढ़ना जरूरी है, इसको जरूर पढ़िएगा। ये आपको हर जगह मिल जाएगी, इसकी साइटेशन मैं भी दे दूंगी। तो हम सेक्शन 41 की अरेस्ट का थोड़ा सा देखते हैं प्रोविजन। सेक्शन 41 क्या कहता है? सेक्शन 41 ये कहता है कि विदाउट वारंट इनकॉग्निजेबल ऑफेंसेज, मैं बार बार कॉग्निजेबल ऑफेंस की बात इसलिए कर रही हूँ कि पुलिस का इन्वेस्टिगेशन सिर्फ कॉग्निजेबल ऑफेंस में ही होता है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में नहीं होता। पुलिस नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में कभी इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगी। उसके लिए यू हैव टू गो टू दी कोर्ट बाय वे ऑफ कंप्लेंट,
and your case would be proceeded as complaint case under 200, right? This area 200 to 204 is CRPC relating to complaint cases. ठीक है, हम क्योंकि सारा ट्रायल वगैरह की बात कर रहे हैं इस वक्त, इसलिए इस एरिया को नहीं टच कर रहे हैं, लेकिन पासिंग रेफरेंस में आपको बता रहे हैं कि ये होता है ऐसे। तो अरेस्ट सिर्फ FIR सिर्फ कॉग्निजेबल ऑफेंस में ही दर्ज होती है, क्योंकि पुलिस को इन्वेस्टिगेटिंग पावर्स है फॉर कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। और कौन से ऑफेंस कॉग्निजेबल हैं कौन से नहीं है वो IPC में तो लिखा ही है, साथ में शेड्यूल में लिखा है, शेड्यूल इज द बाइबल फॉर इट। ओके, तो कभी भी आप लोगों के पास कोई भी ऐसा आ जाता है कुछ भी, तो आपको ये चेक करना जरूरी है कि कॉग्निजेबल है भी या नहीं है। ठीक है, तो अरेस्ट विदाउट वारंट obtained from the court, अगर आप वारंट कोर्ट से ले लेते हो फिर तो कोई बात ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो केसेस कौन से हैं जिनमें कि हम विदाउट वारंट कोर्ट से ऑब्टेन किए बिना हम अरेस्ट कर सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, ये सेक्शन 41 कहता है। उसका एक एरिया ये है कि अगर कोई ऑफेंस कॉग्निजेबल पुलिस ऑफिसर के सामने ही हुआ है, इन द प्रेजेंस ऑफ पुलिस ऑफिसर, तो उसमें अरेस्ट उसी वक्त किया जा सकता है, बारिंग ऑफ एनी पनिशमेंट और एनीथिंग। ओके, लेकिन ऑफेंस कॉग्निजेबल होना चाहिए। ठीक, दूसरा क्या है कि जो ऑफेंसेस लेस देन 7 इयर्स के इम्प्रिजनमेंट के हैं उनमें अरेस्ट सिर्फ सम सर्कमस्टांसेज में हो सकता। कौन कौन से सर्कमस्टांसेज हैं? एक तो ये है कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर समझता है कि वेल फाउंडेड है, यानी कि जो कंप्लेंट किया हुआ है, जो एलिगेशन, वो वेल फाउंडेड है ऑन द बेसिस ऑफ कंप्लेंट। जैसे कि चक्कू से मारा है, MLC है, शार्प इंजरी है, शार्प डेंजरस या शार्प ग्रीवियस इंजरी है। ठीक है, और जो बंदा है उसका नेम्ड है या उसका आई विटनेस है, तो वेल फाउंडेड जहाँ है और ऐसा लगता है कि ये बंदा ऑफेंस रिपीट कर सकता है, may be repeated or further offense may be committed। चक्कू से मारा, बंदा बच गया, अगर उसकी बेल नहीं हुई हो सकता है बाहर जाके कहे तू बच गया ना, अब देख अब पक्का वाला मारता। तो जहां ऐसे चांसेस हैं जहां वेल फाउंडेड लग रहा है और ऑफेंस में भी चांसेज ऑफ फर्दर रेपिटेशन ऑफ द ऑफेंस और फर्दर ऑफेंस के चांसेस हैं। दूसरी बात यह है कि अक्यूज जो है वो भाग सकता है, मे बी एब्सकॉन्डेड, जिससे कि डिफीट ऑफ जस्टिस हो जाएगा। ठीक है, ये सिचुएशन हो सकती है कि जो इन्वेस्टिगेशन है उसके लिए रिक्वायर्ड है अक्यूज, कस्टोडियल इन्वेस्टिगेशन इज रिक्वायर्ड, जैसे नार्को टेस्ट है, या मान लीजिए कि उससे हमने कुछ रिकवरी करनी है, या चांसेस है कि इसने सिमिलर ऑफेंसेज और भी किए हो सकते हैं। तो इन्वेस्टिगेशन अगर फॉर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन अक्यूज्ड इज रिक्वायर्ड। ठीक है, या वो सिचुएशन हो कि ये विटनेसेस को टेम्पर कर सकता है, जो जरूरी विटनेस है उसको टेम्पर कर सकता है, थ्रेट कर सकता है, उसके एविडेंस को डिस्ट्रॉय कर सकता है,
उस पर्टिकुलर प्लेस को जो इन्वेस्टिगेशन का है उसकी शेप बदल सकता है। तो इस तरह की सिचुएशन है जहाँ की इन्वेस्टिगेशन अफेक्ट होगा और अल्टीमेटली जस्टिस अफेक्ट होगा, ऐसे केसेज भी अरेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह की सिचुएशन है जो कि सेक्शन 41 में क्लियरली दे रखी है कि आपने 7 साल से कम वाले ऑफेंसिव पनिशेबल ऑफेंस वाले ऑफेंसेज में अरेस्ट जरूरी नहीं है, बट आप कर सकते हो विदाउट वारंट, विदाउट परमिशन ऑफ द कोर्ट, अगर ऐसी सिचुएशन हो तो। ठीक है, ये 41 का ये एरिया आपको देखना जरूरी था, क्योंकि ये आ सकता है कि 7 साल से कम वाले ऑफेंस में क्या अरेस्ट मस्ट है, कॉग्निजिबल ऑफेंस। तो आप कहोगे कॉग्निजिबल है और एफआईआर हो रखी है तो अरेस्ट करो भाई, राइट। लेकिन 41 में ये है, और अनिश कुमार में कुछ गाइडलाइंस हैं। मैंने गाइडलाइंस के पीछे की भूमिका आपको बता दी कि क्यों हुई वो, राइट। तो वो आप जरूर पढ़ लेंगे और आपको ये क्लियर हो जाएगा। अब हम जाते हैं, हमारी चार्जशीट फाइल हो गई। क्रिमिनल ट्रायल जो है वो रिले रेस की तरह है, इट इज ए रिले रेस। 4 खिलाड़ी हैं, सबके हाथ में बीम है, एक का भी एरिया ढीला पड़ा तो जस्टिस नहीं होगा, अक्यूज वुड बी अक्यूटेड ऑन द बेनिफिट ऑफ डाउट। ठीक है, देखिए कैसे। ये एरिया है पुलिस का, इसके बाद एरिया आता है प्रोसिक्यूशन का, स्क्रूटनी का, उसके बाद आता है कोर्ट का, और उसी में आता है अक्यूज का। अरेस्ट से एफआईआर से चार्जशीट तक, चार्जशीट से कॉग्निजेंस तक प्रोसिक्यूशन, और कॉग्निजेंस से जजमेंट तक अपील, और इसी बीच में अक्यूज का, और लास्ट में आती है जेल्स। तो ये रिले रेस है, और इसमें बैटन हर एक आदमी को पकड़ा रखा है। एक बंदा कंप्लीट करता है, दूसरे को हैंड ओवर करता है, दूसरे को दूसरा देता है। अगर इन्वेस्टिगेशन वीक होगा तो ट्रायल प्रोसिक्यूशन वीक हो जाएगा, कोर्ट का जजमेंट वीक हो जाएगा, और बेनिफिट अक्यूज को मिलेगा। क्योंकि हम एडवर्सरी सिस्टम में लाई करते हैं, और हमारा एडवर्सरी सिस्टम क्या कहता है, 99 कसूरवार बेशक छूट जाएं, लेकिन एक इनोसेंट कन्विक्ट नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम उस इनोसेंट कन्विक्ट की भरपाई नहीं कर सकते। इसके ऊपर बहुत सारी फिल्में भी बनी हैं। ये कहा गया कि कैपिटल पनिशमेंट पर भी ये बहुत बार उठी है बात कि अगर किसी को फांसी की सज़ा मिल गई और वो गलत मिल गई तो क्या हम उसके जीवन को वापस ला सकते। तो ये हमारा एडवर्सरी सिस्टम है, और एडवर्सरी सिस्टम का मतलब ये है कि एक साइड पर प्रोसिक्यूशन है और एक साइड पर अक्यूज है, और प्रोसिक्यूशन को अपना केस अक्यूज के लिए बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव करना होगा। देयर शुड नॉट बी इवन ए सिंगल डाउट एट द टाइम ऑफ कन्विक्शन। तो ऐसी हालत में हमें ध्यान देना है कि कैसे हमारा ट्रायल चलता है। अब देखिए कॉग्निजेंस की स्टेज आती है, सेक्शन 190 सीआरपीसी। कॉग्निजेंस 3 तरीके से लिया जा सकता है, 1, 2, 3। इस सेक्शन को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे आप, इंपॉर्टेंट है। इट इज ए कॉग्निजेंस, क्योंकि यहीं से ट्रायल शुरू होगा। कॉग्निजेंस के बाद कॉग्निजेंस हम ले सकते हैं, कोर्ट पुलिस रिपोर्ट पर ले सकती है, 173 सीआरपीसी वाली रिपोर्ट चार्जशीट पर। स्यूमोटो ले सकती है और कंप्लेंट पर ले सकती है। ठीक है, हम आज क्रिमिनल ट्रायल की बात करें तो हम पुलिस रिपोर्ट पर अभी जाते हैं। हम यहाँ के बाद आ जाते हैं 173 के बाद ट्रायल पर। ट्रायल में पहले स्टेज आती है इंक्वायरी बाय द कोर्ट।
किस चीज़ की इंक्वायरी करता है कोर्ट? एलिगेशंस ट्रू है या नहीं, प्रीमा फेसाई। अगर वो ये कह दे कि हाँ पक्का है तो फिर तो ट्रायल की जरूरत नहीं है। प्रीमा फेसाई एलिगेशंस आर ट्रू एंड available for prosecution of the accused। हमें फर्दर प्रोसीड करना चाहिए अक्यूज के लिए, राइट। और जब हम उस पर चले जाते हैं, इंक्वायरी कंप्लीट कर लेते हैं, तो हमारी स्टेज आ जाती है चार्ज की, राइट। या चार्ज पर हम जाते हैं 211 में। मैंने इसीलिए आपको बोला था कि हम कंप्लेंट केस का जो ट्रायल है 200 से लेकर 207, 8, 9, कंप्लेंट केस के साथ साथ ये 207 से 9 तक जो है ये सप्लाई ऑफ पेपर्स एंड कमिटमेंट ऑफ केसेस ये छोटे छोटे सेक्शंस हैं, इसको जस्ट गो थ्रू, इसमें कुछ टेक्निकलिटी नहीं है। जैसे ही चार्जशीट आएगी अक्यूज को पेपर दिए जाएंगे कंप्लीट चार्जशीट के, दैट इज कंप्लायंस ऑफ 207, राइट। 200 से 204 तक का जो एरिया है दैट इज कंप्लेंट केस। अगर कोर्ट के सामने डायरेक्ट आ जाएगा कोई केस तो कंप्लेनेंट को प्रूव करना होगा प्रीमा फेसाई की एलिगेशंस आर वेल फाउंडेड, उसके बाद कोर्ट सम्मन करेगा, क्योंकि अब पुलिस रिपोर्ट तो आई नहीं, इन्वेस्टिगेशन है नहीं, फील्ड इन्वेस्टिगेशन, राइट। तो कोर्ट कंप्लेंट के बेसिस पर ही देखेगा कि 204 तक जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। 207 में कंप्लायंस ऑफ कॉपीज आ जाती है, चार्जशीट आ गई, उसकी कॉपी आपको कंप्लीटली लेजिबल कॉपीज प्रोवाइड करनी है, और ये अक्यूज का राइट है। ये उसका राइट आर्टिकल 20 में भी है, 20 एंड 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। याद रखिए इनसे रिलेटेड जब भी आप आंसर लिखेंगे, अभी तो प्रीलिम है, मेंस में जब आंसर लिखेंगे तो आपने रेलेवेंट जितने भी लेजिस्लेशन है पर्टिकुलरली कॉन्स्टिट्यूशन उसको रेफर करना है, उसी से आप बढ़िया आंसर लिख पाएंगे। तो याद रखिए जब हम अरेस्ट की बात करते हैं, डिटेंशन की बात करते हैं तो आर्टिकल 20 याद रखना है, और जब हम उसमें आगे के प्रोसीजर कॉपी मिलनी है आर्टिकल 22 की बात करते हैं। आर्टिकल 21 इज पर्सनल लिबर्टी एंड लाइफ, ठीक है। तो यहां पर हम जा रहे हैं सप्लाई ऑफ पेपर्स में 207 में, पेपर्स पूरे हो गए। अगर वो ऑफेंस ट्रायबल बाय सेशंस है तो कमिट हो जाएगा, इफ इट इज ट्रायबल बाय सेशंस। तो ये याद रखिए कि सेशन ट्राइबल मैटर भी पहले मजिस्ट्रेट के पास ही आएगा, कॉग्निजेंस मजिस्ट्रेट ही लेगा, हमारे पास कॉग्निजेंस का राइट जो है वो मजिस्ट्रेट के पास है। कुछ केसेज में सेशंस के पास भी है, जैसे पॉक्सो, कुछ स्पेशल एक्ट्स हैं उनमें कॉग्निजेंस डायरेक्ट सेशन कोर्ट लेती है, वो स्पेशल एक्ट्स हैं, स्पेशल कोर्ट्स एस्टेब्लिश्ड है उसके लिए, राइट। लेकिन ये जो है ज़्यादातर केसेस दे प्रोसीड थ्रू कमिटमेंट, तो वो कमिट कर देंगे, कॉपी सप्लाई करके कॉपी कंप्लायंस होगी, कमिटल फॉर ट्रायल, ठीक है। अब हम चार्ज की स्टेज पर आ जाते हैं। यहाँ पर मैंने यहाँ इंक्वायरी की बात की, हमने पहली जो इंक्वायरी देखी थी वो इन्वेस्टिगेशन की थी, वो INQ वो थी, वो इंक्वायरी कर रहा है कि वेदर कॉग्निजेबल ऑफेंस हैज बीन टेकन और नॉट, और दैट इज इंक्वायरी रिलेटिंग टू इन्वेस्टिगेशन, दिस इज इंक्वायरी बाय द कोर्ट। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है कि क्या कोर्ट के पास भी इंक्वायरी का राइट है, बिल्कुल, ठीक है। तो कोर्ट की जो इंक्वायरी है वो तब तक है जब तक वो चार्ज देख रहे हैं, ट्रायल के दौरान भी उसके पास इंक्वायरी का राइट है, कुछ बहुत फ्यू, बहुत रेयर, राइट, वो हम डिस्कस करेंगे जब हम उसको डिटेल में करेंगे। तो यहाँ चार्ज आ गया। अब चार्ज की स्टेज पर 3 सिचुएशंस हो सकती हैं, या तो अक्यूज डिस्चार्ज हो जाए, ज़्यादा ऑफेंसेज में से कुछ ऑफेंसेज में डिस्चार्ज हो जाएगा, कुछ ऑफेंसेज में आगे चल सकता है, या सारे में डिस्चार्ज हो सकता है, राइट। तो अगर मान लीजिए कोर्ट कम्स टू द कंक्लूजन दैट जो भी मटेरियली कलेक्ट करके लाए हैं चार्जशीट के अंदर, इसमें कोई ऑफेंस नहीं मिलता है,
या जो ऑफेंसेस जिन्होंने दे रखे हैं इसके अंदर नहीं बनते, ठीक है, तो डिस्चार्ज हो सकता है। डिस्चार्ज हो गया तो क्लोज हो गया केस। चार्ज फ्रेम हो गया और अक्यूज प्लीड गिल्टी कर लेता है, प्लीड्स गिल्टी, तो ट्रायल की जरूरत नहीं है। सिविल केस में हमने क्या, सिविल ट्रायल में क्या बताया था कि सारी प्लीडिंग्स के बाद कोर्ट देखता है एडमिशन पार्ट कितना है और डिस्प्यूटेड पार्ट कितना है। एडमिशन पार्ट में जजमेंट ऑन एडमिशन कर दो और जो डिस्प्यूटेड पार्ट है इश्यूज फ्रेम कर दो। इश्यूज फ्रेम होने के बाद ट्रायल कमेंस हो जाता है। यहाँ भी ये अब सिचुएशन वही आ गई है, इश्यूज वाली, चार्ज वाली। तो अगर अक्यूज ने प्लीड गिल्टी कर दिया तो कन्विक्शन हो गई और क्लोज हो गया केस, कन्विक्शन के साथ सेंटेंस हो गई, ठीक है। तीसरी सिचुएशन आती है कि चार्ज फ्रेम हुआ है, चार्ज फ्रेम्ड एंड अक्यूज प्लीड्स नॉट गिल्टी, नॉट गिल्टी, देन ट्रायल कमेंस्ड, ट्रायल कमेंस्ड। सो कभी कभी ये पूछा जाता है कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के हिसाब से ट्रायल कब कमेंस होता है, तो कुछ लोग कहते हैं चार्जशीट फाइल होते ही ट्रायल कमेंस, कोर्ट में आते के साथ ही ट्रायल शुरू हो जाएगा। नो, ट्रायल कमेंस व्हेन अक्यूज डिस्प्यूट्स चार्जेस। जी मैंने किया ही नहीं है, तभी तो प्रूव करने की बारी आएगी। एंड द मोमेंट ट्रायल कमेंस्ड एविडेंस एक्ट आ जाता है बीच में, एविडेंस एक्ट जम्प्स इनटू ट्रायल। ओके, आगे चले। किसी तरह का कोई कंफ्यूजन है, ये आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगा, सारा लिखा हुआ, डोंट वरी, एवरीथिंग इज बीइंग रिकॉर्डेड। अब आगे चलते हैं, हमारा ट्रायल कमेंस हो गया। अब हमारा काम आया, जिस काम के लिए तुम लोग एग्जाम दे रहे हो वहां से मेन काम आ गया एंड हम प्रोसीड कर गए क्रिमिनल ट्रायल पे। अब बैटन किसके हाथ में आ गई, कोर्ट के हाथ में, राइट। चार्जशीट से चार्ज तक प्रोसिक्यूशन के हाथ में थी, प्रोसिक्यूशन ये साथ साथ भी चलेंगे सारे, लेकिन अब नाउ कोर्ट्स वर्क स्टार्ट्स, प्रोसिक्यूशन विल ओपन द केस, स्टार्ट्स। अब मैं थोड़ा सा एविडेंस एक्ट पर जाऊंगी। कल आपने एविडेंस एक्ट किसी ने देखा था जो हमने कोर्ट के क्रैश कोर्स में किया था, नहीं देख पाए थे, चलिए थोड़ा सा इंडियन एविडेंस एक्ट, इससे हमारे को ये जो आगे का ट्रायल है वो क्लियर हो। इंडियन एविडेंस एक्ट कब हुआ ये बताओ मुझे, कौन से साल का है? 1872 मीन्स बिफोर इंडिपेंडेंस, बिफोर इंडिपेंडेंस मीन्स ब्रिटिश क्राउन से आया। एविडेंस एक्ट में आफ्टर इंडिपेंडेंस काफ़ी सारे अमेंडमेंट हुए हैं, लेकिन बेसिक जो है वहीं से है। और जितने भी लेजिस्लेशन उनकी ब्यूटी वही है कि हम डेफिनेशन पार्ट करते हैं उसके बाद आगे जाते हैं। तो हम स्कीम ऑफ एविडेंस एक्ट अगर देखेंगे, जो स्कीम है एविडेंस एक्ट की वो ये है कि सेक्शन 3 जो है वो इंटरप्रिटेशन क्लॉज है, और इंटरप्रिटेशन क्लॉज फैक्ट क्या है वो डिसाइड करता है, फैक्ट इन इशू क्या है वो डिसाइड करता है, वो बताता है कि क्या है ये, एविडेंस क्या है वो बताता है। एविडेंस की डेफिनेशन भी इंडियन एविडेंस एक्ट में दी हुई है, राइट। और प्रूव्ड, नॉट प्रूव्ड और डिसप्रूव्ड, इसको भी डिफाइन करता है, ठीक है। और सेक्शन 4 जो है वो प्रिज्यूम्शन की बात करता है, प्रिज्यूम, इसमें मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम एंड कंक्लूसिव प्रूफ। चार्जशीट के अंदर पुलिस ने एलिगेशंस लगाए, कुछ फैक्ट्स विद एविडेंस दिए, एविडेंस नहीं,
डॉक्यूमेंट्स, मटेरियल कहते हैं उसको। लॉ वाले बच्चों को बिल्कुल वर्ड्स को बहुत ध्यान से चूज करना है। एविडेंस वो तब बनेगा जब प्रूव हो जाएगा, राइट। फैक्ट्स दिए और उसने फैक्ट्स के साथ कुछ मटेरियल भी लगाया, चक्कू भी लगाया, उसके साथ चक्कू के फिंगरप्रिंट्स लगाए, फिंगरप्रिंट की रिपोर्ट लगाई है, स्टेटमेंट भी लगाई है, बयान भी लगाए हैं, सब कुछ लगाया हुआ है, मेडिकल रिपोर्ट भी लगाई हुई है। अब प्रोसिक्यूशन को प्रूव करना है उन फैक्ट्स को। ये जो एविडेंस है, इस एविडेंस के दो पार्ट हैं, एक होता है ओकुलर एविडेंस और एक होता है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। आजकल डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस भी इंक्लूडेड है। ज़्यादातर लोग आजकल बात व्हाट्सएप से, ईमेल से और मीडिया से करते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस भी उसमें इंक्लूडेड है। डॉक्यूमेंट क्रिएशन कम हो गया इलेक्ट्रॉनिक एज में और पेपरलेस सोसाइटी होती जा रही है, तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस घुस गया है। और ऑकुलर एविडेंस होता है वो स्टेटमेंट्स जो कोर्ट ने परमिट की हैं विटनेसेस की, राइट। तो ऑकुलर एविडेंस मीन्स मुंह जबानी वाला मौखिक, और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होगा कागजात। डॉक्यूमेंट इंक्लूड्स इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस। अब हम जाते हैं फैक्ट्स से प्रूव की तरफ, क्योंकि जजमेंट जो बनेगी वो एस्टेब्लिश्ड फैक्ट्स पर बनती है, जो प्रूव हो गए, जो फैक्ट्स एस्टेब्लिश हो गए। और वो कैसे प्रूव होते हैं? एविडेंस के द्वारा। एविडेंस के द्वारा होता है ओरल, ऑकुलर एविडेंस और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस। ठीक है जी। तो यहाँ पर प्रोसिक्यूशन को इन फैक्ट्स को इस एविडेंस के उस पर उतरना होता है, और एविडेंस का 101 और 102 क्या कहता है? ऑनर्स ऑफ प्रूफ एंड बर्डन ऑफ ऑनर्स ऑफ प्रूफ। ये दो सेक्शंस एविडेंस एक्ट के याद रखिए। ये ट्रायल से पहले इसलिए रिक्वायर्ड है क्योंकि यहाँ पर मैं बताऊंगी आपको कि ट्रायल के दौरान क्या क्या चीज़ें दी जाती हैं और ट्रायल कैसे होता है। इसमें लिखा हुआ है सेक्शन 101 में, कौन प्रूव करेगा? हु असर्ट्स शैल प्रूव। ओके। और अगर जिसके ऊपर बर्डन डाल रखा है, मिस्टर ए पर बर्डन डाला हुआ है फॉर प्रूविंग, और वो प्रूव नहीं कर सका, तो क्या होगा? केस विल फॉल। पर्सन ए shall fail to get what? Judgment in his favor. This is the law of evidence. सिविल केस में किसी ने कहा कि मैं ऑनर हूं इस प्रॉपर्टी का और मुझे पोजेशन चाहिए। जो बैठा है वो ऑनर नहीं था और पोजेशन में बैठा है, उसे डिस्पोजेस कराइए, राइट। उसने असर्ट किया है मैं ऑनर हूं, तो उसी को प्रूव करना है ऑनर हूं। अगर वो ये प्रूव नहीं कर सका थ्रू हिज डॉक्यूमेंट्स, तो वो ये नहीं कह सकता है कि बी को कहिए वो प्रूव करे अगर वो ऑनर है तो। चलो मैं तो नहीं प्रूव कर सका, पर जो बैठा है उससे तो पूछो जी, इसके पास है कुछ, मेरे पास तो चलो नहीं निकला, मेरे कागज तो तुम्हें पसंद नहीं आए, ठीक है, लेकिन आप इससे पूछ सकते हो जो बैठा है। कोर्ट विल से नथिंग डूइंग। ट्रायल का मतलब यही है। हु असर्ट्स, सेक्शन 101 बहुत प्यार से कहता है कि जिसने क्लेम किया है, जो रिलीफ मांग रहा है, जो असर्ट कर रहा है, वही प्रूव करेगा। और अगर वो प्रूव नहीं कर सका तो फेल हो जाएगा, फेल इन गेटिंग द जजमेंट। दिस इज द लैंग्वेज ऑफ सेक्शन 101। आप अगर पढ़ेंगे ध्यान से तो आप ये देखेंगे कि 101 की लैंग्वेज यही है। Whoever desires any court to give judgment as to any legal right or liability dependent on the existence of facts which he asserts must prove that those facts exist. कोर्ट को बिलीव कराना होगा कि उस तरह के फैक्ट्स एग्जिस्ट करते हैं। और 102 कहता है on whom burden of proof lies, the burden of proof in a suit or proceeding lies on that person who would fail if no evidence at all
वर गिवन ऑन ईदर साइड। अगर मान लीजिए नहीं दिया गया तो फेल हो जाए। तो ये है एविडेंस एक्ट का जजमेंट लेने का प्रोसीजर, राइट। अब हम जाएंगे ट्रायल में, प्रोसिक्यूशन विल स्टार्ट। एक प्रोविजन हम देखेंगे, सेक्शन 135 और 136 है एविडेंस एक्ट में। सेक्शन 135 कहता है कि ये कहीं भी नहीं लिखा है, 101 भी ये कहता है कि कौन पहले खोलेगा केस को, कौन शुरू करेगा, लेकिन ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बताएगी कि कौन पहले शुरू करेगा। तो क्रिमिनल ट्रायल में प्रोसिक्यूशन विल स्टार्ट बिकॉज ऑफेंस इज ए सोशल रॉन्ग, स्टेट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड द केस का नाम इज स्टेट वर्सेस मिस्टर ए। तो स्टेट विल ओपन द केस, स्टेट प्रोसिक्यूशन विल स्टार्ट एंड विल गिव प्रोसिक्यूशन एविडेंस, and it will prove facts and material of charge sheet through the passage and rules of evidence act, और इनको प्रूव करेगा। अब प्रूव्ड की डेफिनेशन भी एविडेंस एक्ट में दे रखी है। प्रूव्ड में वो कहते हैं कि प्रूव्ड हम तब मानेंगे जबकि कोर्ट बिलीव करे कि दैट पर्टिकुलर फैक्ट्स एग्जिस्ट। उस स्टेज तक ले जाए फैक्ट्स कि कोर्ट को बिलीव करना पड़े कि वो फैक्ट्स एग्जिस्ट करते हैं। और डिसप्रूव क्या होता है कि कोर्ट ये बिलीव करे कि डज नॉट एग्जिस्ट। अगर प्रोसिक्यूशन कहता है अक्यूज ने चाकू मारा है बी को, और अगर अक्यूज कहता है कि वो उसने नहीं मारा है, तो ये बी प्रूव करेगा कि ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता था, तो वो डिसप्रूव करेगा। तो प्रूव करने का डेफिनेशन है एविडेंस एक्ट के अंदर, दैट कोर्ट शुड बिलीव दैट सच फैक्ट एग्जिस्ट। दिस इज द ओनली डेफिनेशन। वर्ड्स पर बहुत ध्यान देना है क्योंकि उससे आपका पेपर में आपको क्लियरली लिखना पड़ेगा, राइट। तो ये हमने प्रूव करने पड़ेंगे ये दोनों चीजें, 1, 2 जो इसके अंदर मटेरियल है, प्रूव्ड तक जाना पड़ेगा। कोर्ट शुड बिलीव दैट इट इज एग्जिस्टिंग, फैक्ट्स एग्जिस्ट, ठीक है। और प्रोसिक्यूशन एविडेंस के बाद जब ये क्लोज हो जाएगा तो स्टेटमेंट ऑफ अक्यूज होगी। जब प्रोसिक्यूशन अपने केस को क्लोज कर देगा, रेस्ट पर चला जाएगा, बोलेगा मैंने इतना ही कहना था, तो फिर कोर्ट का काम आएगा सेक्शन 313। कोर्ट सारा एविडेंस जो प्रोसिक्यूशन ने दिया है उसके ऊपर पुट करेगा। कोर्ट ने ये डॉक्यूमेंट दिया है, कोर्ट ने ये बयान दिया है, तुम्हारे अगेंस्ट ये बयान आया हुआ है कोर्ट में, तो तुम बताइए क्या कहना है। ये स्टेटमेंट ऑफ अक्यूज से पूछा जाएगा कि आप क्या कहते हो इसके बारे में। अगर अक्यूज डिनाई करता है और कहता है कि मुझे अपने डिफेंस में लाना है, राइट, तो वो अपना डिफेंस एविडेंस देगा। और डिफेंस एविडेंस को उसी वेट से देगा जिस वेट से प्रोसिक्यूशन ने दिया, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि 304 में 300 में अगर मर्डर का ट्रायल है, प्रोसिक्यूशन अब मर्डर प्रूव कर देता है, डिफेंस ये प्रूव करता है कि मैं एक्सेप्शन में फॉल कर रहा हूं, तो नॉट अमाउंटिंग तक मर्डर तक जाने के लिए उसे डिफेंस देना होगा, एंड विद द सेम वेट उसे भी इन्हीं दोनों स्टेजेस से गुजरना होगा। अगर वो असर्ट करता है मैंने मर्डर नहीं किया है या मैंने सेल्फ डिफेंस में किया है, तो उसे यही करना पड़ेगा जो असर्ट कर रहा है, वो प्रूव करना पड़ेगा दैट वट एवर ही इज सेइंग इज एग्जिस्टिंग एंड वट एवर प्रोसिक्यूशन सेइंग डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, तो प्रूव्ड और डिसप्रूव्ड में एविडेंस एक्ट के रूल्स पक्के ध्यान रखने हैं। डिफेंस एविडेंस के बाद स्टेज आ जाएगी जजमेंट की। जजमेंट ट्रायल कोर्ट में बिफोर सेशंस जजमेंट आता है 235 में, और नीचे के कोर्ट में जजमेंट आएगा 248 में।
मैजिस्ट्रियल कोर्ट। अब जजमेंट में पोजीशन क्या हो सकती है? इधर अक्यूटल और कन्विक्शन, ठीक है। इफ प्रोसिक्यूशन इज एबल टू प्रूव इट्स केस दैट द एलिगेशंस एग्जिस्ट on the basis of material placed before the court, then conviction. और अगर prosecution fails to prove, then acquittal. और अगर conviction होएगी तो conviction के बाद आएगी sentence. कोर्ट का काम खत्म और जेल का काम शुरू। अब बैटन आ जाएगी जेल के हाथ में। बस अब हम थोड़ा सा बताएंगे कि सेंटेंस में कैसे कैसे सेंटेंस करना है और सेंटेंस की कैलकुलेशन कैसे होती है और कितने साल तक आप कर सकते हो, क्योंकि हमने कॉम्पिटेंस की बात की थी शुरू में, ठीक है। तो अब हम आपको सेंटेंस बताएंगे कि अगर एक से ज़्यादा ऑफेंसेज हैं तो कितनी सेंटेंस कर सकते हैं, अगर सेंटेंस उसके कॉम्पिटेंस से बाहर जा रही है तो कितनी हो सकती है, राइट। तो हम आ गए अब सेंटेंस पर। सेंटेंस में जो प्रोविजन है वो बिल्कुल शुरू में ही आ जाता है 29 से 32 तक। सेंटेंस सेक्शन 29 से सेक्शन 32 सीआरपीसी। सेंटेंस की थियरीज पर हम नहीं कर जाएंगे अभी, उसके लिए एक पूरा लेक्चर चाहिए। तो हम सेंटेंस बताते हैं। अगर मान लीजिए आपको पावर्स याद हैं, सीएमएम और सीजेएम, सेशंस एमएम और जेएम 1 और 2, ठीक है। हमें इनकी पावर्स हमने कहा था और कैपिटल पनिशमेंट जो होती है उसकी कंफर्मेशन जरूरी है हाई कोर्ट से। सेशंस को एनी ऑफेंस एनी पनिशमेंट, बट कैपिटल पनिशमेंट जो है उसकी कंफर्मेशन हाई कोर्ट से होगी। बाकी ये पोजीशन है कॉम्पिटेंस। अब होता है सेंटेंस। सारी सेंटेंस आईपीसी में दे रखी है, कितने तक दे सकते हैं हर एक ऑफेंस के साथ, आपकी अपनी मर्जी नहीं है। मे एक्सटेंड अप टू दिस, उसके बीच में रेंज है तो वो डिस्क्रिशन है। जहां लिख रखा है शैल नॉट बी लेस देन, तो आपको जैसे मैंने पॉक्सो में बताया था 20 ईयर्स, तो आपका डिस्क्रिप्शन ये 20 ईयर से नीचे देने का। मे बी एक्सटेंडेड अप टू 7 ईयर्स और 10 ईयर्स, तो इसमें डिस्क्रिप्शन है कि आप नीचे से कभी तक भी दे सकते हो, राइट। मैंने आपको साथ में एक प्रोविजन बताया था कि अगर आपने ट्राई किया है मैटर को, केस को, कन्विक्शन कर दी है और सेंटेंस आपके कॉम्पिटेंस से बाहर देने की आपका है सरकमस्टांसिस, तो आप उसके लिए ऊपर की कोर्ट जिसके पास कॉम्पिटेंस है वहाँ भेज देंगे और ये करेंगे। अब सेंटेंस देने के दो तरीके हैं। अगर एक से ज्यादा, 1 और मोर ऑफेंस, कन्विक्शन होती है, मान लीजिए कन्विक्शन इन 1 और मोर ऑफेंसेस, ठीक है, सेवरल ऑफेंसेस, तो क्या करेंगे, सेंटेंस या तो कंकरेंट हो सकती है या कंजिक्यूटिव हो सकती है। कंजिक्यूटिव एक के बाद एक, और कंकरेंट हो सकती है, साथ साथ चलेंगी। आपने देखा होगा कभी कभी, आपने राम रहीम के केस में देखा था कि उनके ऊपर कितनी कन्विक्शंस हुई थी कितने केसेस में।
तो दो तरह की चीजें हो गई, एक तो हो गया आपके ऊपर एक ही केस में सेवरल ऑफेंसेज या मोर देन वन केस, ठीक है, ये हो सकता है, यही हो सकता है, एक ही बंदे के पास 2-3 केस है, सब में सेंटेंस हुई है। अब मान लो एक में हो गई लाइफ इम्प्रिजनमेंट, दूसरी में भी लाइफ इम्प्रिजनमेंट, एक में कैपिटल पनिशमेंट, सारी कंजिक्यूटिव कर दी तो कैसे चलेगी। तो एक रूल है, वो रूल ये कहता है सेक्शन 31, सेक्शन 31 कहता है कि अगर कंजिक्यूटिव सेंटेंस देनी है, एक केस में एक से ज्यादा ऑफेंस है, सेवरल ऑफेंसेस के टाइम पर आपने कंजिक्यूटिव सेंटेंस देनी है, नहीं एक के बाद एक, एक के बाद एक। हमने कहा उसके ऊपर ये 304 भी लगती है, उसके ऊपर ये भी लगती है, वो भी लगती है, बहुत सारे ऑफेंसेस कर दिए, तो हमने कंजिक्यूटिव सेंटेंस देनी है, तो हमें लिखना पड़ेगा सेंटेंस में कि दीज सेंटेंसेस शैल रन कंजिक्यूटिवली, राइट। लेकिन ये कंजिक्यूटिव सेंटेंस 14 साल से ज्यादा इन टोटल नहीं दे सकते आप, नॉट मोर देन 14 years। प्लीज रिमेंबर, दिस इज इंपॉर्टेंट फैक्ट जो पूछा जा सकता है, जिस पर आपको ध्यान देना है। सेक्शन 31 सेज कि आप किसी भी हालत में, सेक्शन 31 है 32, 14 साल से ज्यादा नहीं दे सकते। मान लीजिए किसी में 2 साल है, किसी में 3 साल कर दी, किसी में 4 साल कर दी, तो टोटल आप 14 साल से ज्यादा नहीं दे सकते। दूसरा क्या है कि अगर आपने कंजिक्यूटिव वर्ड नहीं लिखा तो कोर्ट इट शैल बी अज्यूम दैट इट वाज कंकरेंट। अजम्पशन जो है वो कंकरेंट सेंटेंस के फेवर में है, ठीक है। अगर ऑर्डर में नहीं लिखा है, सेंटेंसिंग के ऑर्डर में कि उसको कंजिक्यूटिव देना है, तो ये माना जाएगा कि सारे के सारे सेंटेंस कंकरेंट चल रहे हैं। वैसे जनरली कोर्ट लिखती है ऑल सेंटेंसेस शैल रन कंकरेंटली, ओके। अब एक चीज मेरे पास सवाल आया नहीं, मैं सोच रही थी आप लोगों के पास से आएगा। यहां इनकी कंपिटेंस ऐसी है, जरूरी नहीं है कि वो उसे भेजे। ऐसी सिचुएशन में जो एमएम और जेएम जो है वो कंजिक्यूटिव सेंटेंस के टाइम पर अगर वो सारे सेंटेंसेस उनके कॉम्पिटेंस के अंदर आते हैं अलग अलग ऑफेंस में, तो वो नहीं भी भेज सकते, भेज भी सकते हैं, मतलब ऐसा नेसेसरी नहीं है, राइट। तो मजिस्ट्रेट ये याद रखिएगा, मजिस्ट्रेट it is not necessary that the magistrate shall send the case in case more sentence in several cases concludes in total, ठीक है। उनके कॉम्पिटेंस से बाहर जा रहा है और एक ही केस में है और वो कंजिक्यूटिव है, तो वो उसमें उनके कॉम्पिटेंस के अंदर है वो सेंटेंसेस अलग अलग ऑफेंस में, तो टोटल करने पर वो अगर क्रॉस भी कर जाएगा तो इट्स ओके, राइट। तो ये स्पेशल प्रोविजन, स्पेशल पावर एक्सटेंड कर और कंकरेंट मानी जाएगी। अदरवाइज ये 14 साल वाला आप याद रखेंगे कि कोई भी कोर्ट, और ये जो 14 साल है सीएमएम और सीजेएम पर ही लगेगा। जनरल प्रोविजन है कि 14 साल तक की आप एक्सटेंड कर सकते हो, 14 साल तक टोटल कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि 20 साल कर दिया, 30 साल कर दिया, चलो 5 साल इसमें, 2 साल इसमें, 2 साल इसमें, 10 केस हैं, 10 ऑफेंसेज हैं, 3 साल इसके, तो 14 साल के आगे तो जा ही नहीं सकते। लेकिन 14 साल तक का ये जो है, अगर आपकी मूड ये बन रही है तो इसके लिए आपको सीजेएम और सीएमएम के पास भेजना होगा। तो इन दोनों प्रोविजन में थोड़ा सा कंसीलिएशन करनी पड़ेगी आपको।
इन नो केस shall such person be sentenced to imprisonment for a longer period than 14 years, ये जनरल प्रोविजन है. और पावर्स ऑफ ऑफिसर अपॉइंटेड, ये जो है मोड ऑफ कन्फरिंग पावर्स, इसमें आप देखेंगे फॉर द पर्पज ऑफ अपील. अच्छा, एक चीज और ध्यान रखेंगे कि फॉर द पर्पज ऑफ अपील, ये जो 14 साल है सिंगल अपील मानी जाएगी उसकी. ऑफेंसेज अलग अलग है, पर ये फॉर द पर्पज ऑफ अपील टोटल जो सेंटेंस है वो सिंगल अपील में माना जाएगा. अपील के टाइम पर सिंगल ऑफेंस माना जाएगा, सिंगल सेंटेंस मानी जाएगी. ठीक है. तो लैंग्वेज यूज्ड इज for the purpose of appeal by a convicted person, the aggregate of the consecutive sentences passed against him under this section shall be deemed to be a single sentence. अब aggregate punishment जो है ना, वो twice the punishment competent for which नहीं दी जा सकती. मैंने क्या कहा, 14 साल, ये CJM और CMM ही देंगे. क्यों? क्योंकि उन्होंने नेक्स्ट सेंटेंस ये लिख दिया है कि जो कॉम्पिटेंस तुम्हारी है उसका ट्वाइस दी पनिशमेंट तक ही आप टोटल कर सकते हो. जैसे ये 3 साल है इनकी, तो ट्वाइस दी पनिशमेंट कितनी हो गई, 6 years. और इनकी ट्वाइस दी पनिशमेंट क्या हो गई, 2 years. इसके बाहर जाओगे 14 साल वाले में तो ऊपर भेजना पड़ेगा. कंसाइल हो गया. टोटल पनिशमेंट कंजिक्यूटिव 14 साल से ज़्यादा नहीं कर सकते, पहली बात, इसको याद रखिए. दूसरा, जो ऑफिसर कंसर्न है, जो MM कंसर्न है या CM कंसर्न है, जितना उनका कॉम्पिटेंस है उस कॉम्पिटेंस से डबल तक कर सकते. तो 14 साल तो सिर्फ CMM का ही होगा ना, 7 साल तक का उसके पास है ना, तो 14 साल तक तो वही कर सकते हैं. तो बाकी नीचे वाले जो उनके पास तो ट्वाइस करने के बाद तो कॉम्पिटेंस से बाहर ही निकल जाएगा. ठीक है. अब एक छोटी सी चीज और देख लेंगे हम, वो है डिफॉल्ट सेंटेंस. फाइन अगर डिफॉल्ट कर जाता है तो उसमें हम इम्प्रिजनमेंट जो करते हैं वो हम कितनी कर सकते हैं, 1/4 ऑफ द कॉम्पिटेंस. यानी नीचे वाले जो मजिस्ट्रेट है, सेकंड वाले, उनके पास अगर 1 साल की पावर है तो वो डिफॉल्ट में 1/4 ऑफ दी 1 साल 3 months, उससे ज्यादा डिफॉल्ट में पनिशमेंट नहीं कर सकते. क्लियर होगी. तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो बहुत जरूरी हैं, उनको जरूर कर लीजिए. ये हो गया सेंटेंस, इन्वेस्टिगेशन, ट्रायल, इंक्वायरी सब खत्म हो जाता है, ओवरव्यू. ठीक है. बाकी डिटेल्स में तो हम देखते ही हैं कि कैसे करना है. किसी को कोई कंफ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो, अब तक का जितना भी सारा किया है उस सब में, तो वो पूछ. आई होप आई हैव सक्सीडेड in taking you for the criminal trial in criminal court.